Hello children, welcome to my lecture. Today we are going to do prose section 1.5 Mrs. Adi, written by Selah K. Smith. Children, we already know Selah K. Smith was a novelist and poetess. Means she has written many more novels and many more poems also. She was born on 4th February 1887 at St. Leonard on Sea, Sussex in England, and she was died on 14th January 1956 at the age of 68 at Northampton, Sussex, England. Children, many of her novels were set in the borderland of Sussex and Kent in the English regional tradition. So in this story, Mrs. Addis, see children, she is Mrs. Addis and this is Mr. Crouch, we can say Peter Crouch. So already we completed some part of this novel. In this novel, these two characters are very important character. Mrs. Addis is main character and Mr. Peter Crouch also be a main character. So this story runs between Mrs. Addis and Mr. Crouch. So in last lecture we studied Mrs. Addis lives in a tongue of the land running to the Kent. That is, we can say northeast Sussex. And here she live with her son Tom. One day at a dark night, one person came inside in her house without knocking the door, and that person name is Peter Crouch. When she asked why you come without knocking the door in my house, so that person say, I think no need to knock, क्योंकि मैं अगर नॉक करता तो अदर पर्सन वो नॉक सुन लेते. He says मैं हेमरवुड फॉरेस्ट में था, वहाँ पर जो है मैं अपना कुछ काम कर रहा था. मीन्स ही इज अ पीटर क्राउच. Peter Crouch, he was a poor person. He is best friend of her son Tom from childhood when they are studying in school. From that time until now also they are very best friend. But Peter Crouch was not a good by their work. He was a poor person. He was in a forest, want to kill the rabbit. When some guard and Tom in forest saw the Peter Crouch, that is the dark night, and that's why Peter Crouch not able to see the Tom. When guards start the following Peter Crouch, so Peter Crouch without thinking anything, he take out a revolver and he shoot a person. So Mrs. Addis asked कि वो person जिंदा है मर? Peter says he don't know, he is dead or alive, and he want a place to hide, and that's why he come over here. But Mrs. Addis want Peter have to go out of his house, but he told he was a good friend of Tom और टॉम के लिए वह उसे घर में छिपने दे. Mrs. Addis agreed, but again she thought it's not good and she want कि पीटर जो है उसके घर से चला जाए. So she told Peter Crouch he have to catch a train and he have to go from here. But Peter replied कि उसके पास ट्रेन के लिए क्या है, पैसे भी नहीं हैं. So Mrs. Addis अपने पॉकेट में हाथ डालती हैं और उसे कुछ सीलिंग्स देती हैं और बोलती हैं कि ये ट्रेन की टिकट से भी ज़्यादा है, और किचन में कुछ बनाने चली जाती हैं. तो जब पीटर क्राउच जो दूसरे रूम में रहता है तो वहाँ से वह एक छोटा सा जो क्रिक है उसमें से देखता रहता है और उसे अच्छे खाने की खुशबू आती है. तो उसे यह लगता है कि वह जो खाना बना रही है वह खाना वह उसे जब टॉम आएगा तो उसे भी देंगी और पीटर को भी देंगी, क्योंकि पीटर क्या था, बहुत भूखा था. मिसेस अदीस से वह कहता है कि जब तक टॉम आता है तब तक वह उसे यहाँ रुकने दे, उसके बाद वह चला जाएगा. लेकिन वापस मिसेस अदीस कहती है जब टॉम आएगा तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वह क्या करे, यह जो सीलिंग्स उन्होंने दिया है उसे लेकर के वो फट से यहाँ से निकल जाए और वह वापस से चली जाती हैं. जब वो टॉम को पैसे देती हैं तो उस समय टॉम कुछ देर के लिए शांत रहता है और उसके बाद वह उन्हें थैंक यू बोलता है. मिसेस अदीस कहती हैं कि मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू थैंक मी, क्योंकि वह ये सब किसके लिए कर रही हैं, शी इज डूइंग ऑल थिंग फॉर हर सन टॉम. Okay, now open your textbook page number 47. See the paragraph. I hope you won't get into trouble because of this. When Mrs. Addis says, no need to say thanks to me. Whatever I'm doing, that I'm doing it
for my son Tom. Then Peter replied, I hope Mrs. Addis won't get into trouble because of this. So Mrs. Addis says, there isn't much fear. No one's ever likely to know you have been in this court. That's why I had sooner you went before Tom came back. For maybe he had bring a friend with him and that make trouble. So Mrs. Addis कहती हैं कि there isn't much fear. Even no one ever likely to know कि you are hidden in my cottage. And that's why I told, जितनी जल्दी हो सके you have to wait before Tom came back. हो सकता है कि जब टॉम लौट कर आए he had bring a friend with him and that had make trouble for you. She opened the door for him, but on the threshold they both stood still, for again footsteps could be heard approaching, this time from the far south. Now Mrs. Addis opened the door for Peter Crouch, but on the threshold they both stood still. Why? Because again the footstep could be heard approaching the Mrs. Addis cottage, and this time the footstep sound is coming from the far south side of Mrs. Addis cottage. Maybe it's Tom, said Mrs. Addis. There's more than one man there, and I can hear voices. Mrs. Addis said, I think this footstep is Tom. So maybe Tom is there. So Peter Crouch replied, no, Mrs. Addis, there's more than one man footstep, and this footstep sound I can hear. You had better go back, she said shortly. Wait till they have passed anyway. Now Mrs. Addis said to Peter Crouch, it is better you had go back into the cottage, and there you have to wait till they have passed anyway. With an unwillingly shrug, he went back into the little dusty shed which he had come to hate, and she locked the door upon him. Here we read it unwillingly shrug. The meaning of unwillingly shrug is to reluctantly raise shoulders slightly. See, this child is what? He raised the shoulder. ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है. So this is the meaning of unwillingly shrug. With an unwillingly shrug, Peter Crouch went back into the little dusty shed. वह नहीं जाना चाहता था वो little dusty shed में, फिर भी वह क्या किया? वह little dusty shed में गया. Which he had come to hate. जहाँ पर वह जाने से क्या करता था? बहुत घृणा कर रहा था. Where जो लिटिल डस्टी सेट था मिसेस अदिस का, वहाँ पर वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर गया. And Mrs. Addis locked the door upon Peter Crouch. Next para. The footsteps drove nearer. They came slowly and heavily this time. For a moment he thought they would pass also, but their momentary dulling was only the crossing the strip of grass outside the door. The next minute there was a knock. It was not Tom. Then footstep की जो आवाज आ रही थी वह नजदीक आती चली जा रही थी. That's why here written ना, the footstep drew nearer. The footstep sound become closer to Mrs. Addis' cottage, and the person who are more than one. They come slowly and heavily this time. For a moment, Peter Crouch thought they would pass also. कि कुछ क्षण के लिए पीटर क्राउच को लगता है कि वो लोग चले गए. क्यों? अभी क्या था? पैरों की आवाज मिसेस जो अदिस थी उनके घर के एकदम नजदीक हो गई थी. अब वो स्लोली आ रहे थे और इस वजह से आवाज क्या थी? एकदम दब गई थी, धीमी हो गई थी. कुछ क्षण को पीटर क्राउच को लगा कि वो यहाँ से चले गए हैं. See here also give momentary dulling means for a brief period of time. But their momentary dulling was only the crossing of a strip of grass outside the door. कुछ क्षण के लिए ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं? Crossing the strip of grass which was outside of Mrs. Addis' door or cottage. Next minute में ही क्या हो गया? दरवाजे पे नॉक की आवाज आ गई. तो it was not Tom then. मिसेस अदिस ने सोचा या तो टॉम नहीं है, फिर कौन है? इन शॉर्ट वी कैन से कि अब क्या हो गई, जो पैरों की आवाज थी, जो पैर के जूतों की आवाज थी, वो एकदम घर के नजदीक हो गई, धीरे धीरे आने लगी. तो पीटर क्राउच को लगा कि वो लोग यहाँ से
चले गए हैं। लेकिन वो जो आवाज़ थी वह मिसेस अदिस के घर के बाहर जो घास है वहीं से आवाज़ आ रही थी। और नेक्स्ट मिनट में ही क्या हो गया, उनके दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आई। तो मिसेस अदिस और पीटर दोनों ने सोचा ये टॉम नहीं है, लेकिन टॉम नहीं है तो फिर कौन है। नेक्स्ट पैरा, ट्रम्बलिंग विथ एंग्जाइटी एंड क्यूरियोसिटी पीटर काउच पुट हिज आईज टू वन ऑफ द न्यूमरस क्रैक इन द door and looked through into the kitchen. He saw Mrs. Addis go to the cottage door, but before she could open it, a man came in quickly and shut it behind him. Trembling मतलब कांपना, anxiety मतलब डर, fear, curiosity मतलब जिज्ञासा। तो यहाँ पर पीटर क्राउच डर से कांप रहा है, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा भी है कि जो नॉक हुई है डोर पे वहाँ पर कौन आया है। And that's why Peter Crouch put his eyes to one of the crack in the door and he looked through into the kitchen. वो क्या कर रहा है, जो दरवाजे में क्रैक है उसी से देख रहा है किचन की तरफ। He saw Mrs. Addis go to the cottage door, but before she could open it, a man came in quickly and shut it behind. वह देखता है कि मिसेस अदिस किचन की तरफ जाए और दरवाज़ा खोले, उसके पहले ही कोई आदमी दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है। क्राउच रिकॉग्नाइज विडलर, वन ऑफ द कीपर ऑफ स्कॉटनी कास्टल। स्कॉटनी कास्टल एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। एंड ही फेल्ट हिज हैंड्स एंड फीट ग्रो लेडन को। दे न्यू वेयर ही वॉज, दे हैड फॉलो हिम, they had guessed that he had taken refuge with Mrs. Addis. Refuge मतलब shelter लेना। It was all up. He was not really hiding. There was no place for him to hide. यहाँ पर पीटर क्राउच जो पर्सन दरवाजा खोलकर अंदर आया है और क्विकली डोर को बंद कर दिया है, दैट पर्सन को वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। उस पर्सन का नाम विडलर है, जो कीपर में से एक है, और यह कीपर स्कॉटनी कास्टल का कीपर है। Here Peter Crouch felt keepers knew where Peter Crouch was, and because of this fear, his hand and feet becomes cold. यहाँ पर पीटर क्राउच जो कीपर आया है उसे पहचान लेते हैं। वह जानता है कि वह कौन है, वह विडलर है, यह एक कीपर है स्कॉटनी कास्टल का। और उसे देखते ही पीटर क्राउच के हाथ और पैर डर के मारे ठंडे हो जाते हैं। पीटर क्राउच थॉट द कीपर्स नो वेयर ही वाज हाइडन एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग द पीटर क्राउच। पीटर क्राउच अगेन थॉट दे हैड गेस्ड दैट पीटर क्राउच हैड टेकन शेल्टर विद मिसेस अदिस। नाउ ही से ऑल अप, अब पूरा सब खत्म हो गया। He was not really hiding. There was no place for him to hide. वह कहता है कि मैं यहाँ पर छुपा नहीं हूँ, अब मुझे कहीं भी छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। Directly they opened the inner door. They would see him. Why couldn't he think of things better? Why wasn't he cleverer at looking after himself like other men? Again he started thinking when they will come inside and directly they open the inner door, then they will see me. So he is thinking, why couldn't he think of things better? Why wasn't he cleverer at looking after himself like other men? वह कहता है कि जब वो दरवाज़ा खोलेंगे आके अंदर तो मैं उन्हें दिख जाऊंगा। क्यों नहीं मैंने अच्छा सोचा अपने बारे में, मैं क्यों नहीं उतना होशियार हूँ जैसे कि अदर लोग होशियार होते हैं। और यह सब सोच के हिज लेग सडनली रिफ्यूज टू सपोर्ट हिम एंड ही सेट डाउन ऑन द पाइल्स ऑफ सैक। और यह सब सोच के वह और ज़्यादा डर जाता है और उसके जो पैर हैं दे आर नॉट अलाउड टू सपोर्ट हिम एंड दैट्स व्हाई ही सेट down on the piles of sack. The man in the kitchen seemed to have some difficulty in saying what he wanted to Mrs. Addis. He stood before her silently twisting his cap. विडलर जो कि कीपर है वो मिसेस अदिस के घर पे आया है। वह यह संदेश देना चाहता है कि उसका बेटा जो टॉम है वो शूट आउट होकर मर गया। जो यह संदेश वह मिसेस अदिस से कहने के लिए आया है वह कहने में उसे डिफ़िकल्टी हो रही है, इसलिए वह मिसेस अदिस के सामने साइलेंटली खड़ा हुआ है और अपनी कैप को ट्विस्ट कर रहा है, अर्थात वह आइडिया ढूंढ रहा है या वह एक तरीका ढूंढ रहा है किस तरह से इस बात को वह मिसेस अदिस के सामने रखे। वेल व्हाट इज इट, शी आस्क्ड। आई वांट टू स्पीक टू यू मैम। जब विडलर अपनी कैप घुमाता रहता है और मिसेस अदिस के सामने कुछ नहीं बोलता, दैट टाइम मिसेस अदिस विडलर को बोलती हैं, वेल व्हाट इज़ इट,
तो विडलर मिसेस अदिस को आंसर देता है, मैडम आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। पीटर क्राउच लिसन स्टेनिंग हिज ईयर फॉर हिज थर्डिंग हार्ट नियरली डाउन द वॉइस इन द नेक्स्ट room. Oh no, he was sure she would not give him away, if only for Tom's sake. She was a good shot, मिसेस अदी। यहाँ पर पीटर अपनी कान लगा करके बाहर की आवाज़ें सुन रहा है। तो यहाँ स्टेनिंग का मतलब होता है कि फियर, डर या डिफ़िकल्टी, लेकिन उन आवाज़ों को उसे सुनने में क्या हो रही है, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि उसका हृदय तेज़ी से धड़क रहा है। थर्डिंग कर रहा मतलब धड़क रहा है। इसलिए किचन में जो विडलर और मिसेस अदिस के बीच में बात हो रही है उसे सुनाई नहीं पड़ रही है। उसे अपने आप एक मन में बात सोचती है। वह सोचता है कि मिसेस अदिस जो है वह एक अच्छी इंसान है, वह मुझे कीपर्स को नहीं देंगी क्योंकि टॉम मेरा एक अच्छा मित्र है और वह टॉम के लिए ऐसा करेंगे। वेल शी सेड शार्पली एज द मैन रिमेन्ड टंग टाइड, आई हैव बॉट यू बैड न्यूज़ मैन। जब वो मिसेस अदिस से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो मिसेस अदिस कहती है, वेल अच्छी बात है, बोलिए। लेकिन जो आदमी आया है, जो विडलर आया है, who want to talk to Mrs. Addis, he remains speechless. Tongue-tied means speechless. He told, I have brought you bad news, ma'am. And then afterward he opened his mouth and he says to Mrs. Addis, कि I have brought a bad news for you, ma'am. By listening this, Mrs. Addis' expression immediately changed. What? It isn't Tom, is it? He is outside, said the keeper. Viddler want to give her bad news. Her expression immediately changed and she say, it isn't Tom? Viddler replies, yes, he is outside. What do you mean? Said Mrs. Addis and she moved the door. Don't, ma'am, not till I have told you. Told me? What? Oh, be quiet, man, for mercy's sake. And she tried to push past him to the door. Now, when Viddler say, yes, he is a Tom and he is outside. And then Mrs. What do you mean? And she is going to open the door. But Viddler don't open the door. जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक आप दरवाजा मत खोलो. Then Mrs. Addis says, what? Please speak out quickly for the God's sake. God के लिए आप जल्दी बोलो. And she pushed the door. There's been a row. He sat down by Cinder Road. There was a chap there snaring rabbit, and Tom was walking with the boorman and me and old Crouch. We heard a noise there. It was too dark to see who it was, and directly he saw us, he made off. But we had scared him, and he let fly with his gun. तो विडलर बोलता है कि सिंडरवुड के जंगलों में मैं, बूरमैन, टॉम सिंडरवुड के जंगलों में गए थे। तो वहाँ एक व्यक्ति जो है रैबिट को स्नेयर कर रहा था। तो उस समय मैं, टॉम और बूरमैन और ओल्ड क्राउच वहाँ पर थे। हमने वो आवाज़ सुनी। वहाँ पर डार्क था, इट वाज टू डार्क, वहाँ पर बहुत अंधेरा था, तो हम उसे देख नहीं पाए। और इनडायरेक्टली ही सा अस, लेकिन उसने हमें देखा और वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। बट वी स्कैर्ड हिम, लेकिन हम क्या किए, उसे पकड़ने की कोशिश किए। एंड ही लेट फ्लाई विथ हिज गन, और हमने उसे डराने की कोशिश की या पकड़ने की कोशिश की, तो उसने अपनी बंदूक चला दी। अपनी गन से क्या किया, उसने फायर कर दिया और उसे वहाँ फेंक दिया। टॉम said Mrs. Addis. Mrs. Addis बोलती है, Tom, the keeper had forgotten his guard and before he could prevent her, she had flung open the door. कीपर क्या हो गया, जो गार्डी करने आया था, जो कीपर वहाँ वॉच करने आया था कि मिसेस असीस दरवाजा न खोल पाए, वह क्या हो गया, भूल गया। And before could prevent her, अब जब तक कि वह उसका बचाव करता, मिसेस अदिस क्या करती है, दरवाजा खोल देती हैं। The man outside had eventually been waiting for the signal and they came in carrying something which they put down in the middle of the kitchen. जो मैन थे इतनी देर से बाहर वेट कर रहे थे विडलर के सिग्नल का। They came in carrying something, वो लोग कुछ लेकर आए, which they put, जो चीज़ वो क्या किए, मिसेस अदिस के किचन के मिडल फ्लोर पर रख दिए। Which he did, ask Mrs. Addis without tear. मिसेस अदिस बिना रोए हुए विडलर से पूछती हैं, क्या यह
मर गया है? Is he dead? The man nodded. They could not find a dry voice like hers. जो बिल्डर था या जो कीपर्स थे उनकी आवाज़ एकदम बैठ गई थी, उनके गले से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मिसेस अदीस के क्वेश्चन का आंसर क्या किया? नॉडेड करके दिखाया, गला हिलाकर बताया, नॉट करके In the said, Peter Crouch had ceased to sweat and trembling. His strength had come with despair, for he knew he must despair. Beside, he no longer wanted to escape from his things that he had done. Oh, Tom, and I was thinking it was one of the keepers. Oh, Tom. मिसेस अदीस के जो पीछे वाले घर में जो उनका सिर था, वहाँ पर जो पीटर था उसके शरीर से क्या हो रहा है? पसीना निकल रहा है, वह डर के मारे काँप रहा है। स्ट्रेंथ हैड कम विथ डिसअपियर, ही न्यू ही मस्ट डिसअपियर नाउ, बिसाइड ही नो लॉन्गर वांटेड टू एस्केप। पीटर क्राउच जो पीछे के दरवाजे पे है, वह जानता है उसने अब ये किया है, अब इसकी वजह से वो बच नहीं पाएगा। इसी डर से उसके शरीर से क्या हो रहा है? ढेर सारा पसीना गिर रहा है और वह डर से कांप रहा है। अब वो कहता है कि ही नो लॉन्गर वांटेड टू एस्केप, और वह कहता भी है कि मैंने जो काम किया इसकी वजह से मैं ज़्यादा देर तक छुपना नहीं चाहता हूँ। ओ टॉम, पीटर क्राउच बोलता है कि ओ टॉम, मैं नहीं जानता था कि तुम हो, मुझे लगा कि यह कोई कीपर है। ओह टॉम, एंड इट वॉज यू दैट गॉट इट फ्रॉम मी, आई डोंट वॉन्ट टू लिव। और यह जो तुम्हारा दशा हुई है यह मेरे वजह से हुई है, मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहता है। एंड एट लाइफ वॉज स्वीट, फॉर देयर वॉज अ वुमन एट टाइसहर्ट, अ वुमन एज फेथफुल टू हिम एज टॉम, who would go with him to the world's end even now, but he must not think of her. He had no right. He must pay with his life for what he had done. And it, यह क्या था? मिसेस अदीस का जो जीवन था उसके बेटे के साथ में, वह बहुत ही अच्छा जीवन जी रही थी टाइसहर्ट में। एंड एट लाइफ वॉज स्वीट, अभी तक क्या था? जिंदगी बहुत अच्छी थी। फॉर देयर वॉज अ वुमन एट द टाइसहर्ट, वह जो वुमन थी जो टाइसहर्ट में रहती थी वो कौन थी? वह मिसेस अदीस थी। अ वुमन एज फेथफुल टू हिम एज टॉम, यह वुमन क्या थी? बहुत ही फेथफुल थी पीटर के लिए जैसा कि वो टॉम के लिए थी। टू हिम एज टॉम, हु वुड गो विथ हिम टू द वर्ल्ड्स एंड इवन नाउ। अब जो क्या है? हु वुड गो विथ हिम, इसके साथ में जो चली गई, द वर्ल्ड एंड इवन नाउ, जो था उनका बेटा है वह ख़त्म हो गया, अब उनके लिए जीवन ख़त्म हो गया है, अब इवन नहीं है। बट ही मस्ट नॉट थिंक ऑफ हर, लेकिन वह उनके बारे में नहीं सोच रहा था। ही हैड नो राइट, ही मस्ट पे विथ हिज लाइफ फॉर वॉट ही डन। यह पीटर क्राउच कहता है कि उसको यह कोई भी राइट नहीं है, इसको इसके लिए क्या करना है? मस्ट बी हैव टू पे विथ हिज लाइफ फॉर व्हाट ही डन। इन शॉर्ट हम कहेंगे तो इस पैराग्राफ में यहाँ पर पीटर सोचता है कि मिसेस अदीस जो कि टाइसहर्ट में रहती है, टॉम के लिए मतलब अपने बेटे के लिए फेथफुल है, वैसे ही मेरे लिए भी फेथफुल है। उनकी ज़िंदगी उनके बेटे के साथ बहुत अच्छी चल रही थी जो कि आज इस दुनिया से चला गया है। बट ही मस्ट नॉट थिंक ऑफ, वह जो है उनके बारे में नहीं सोच रहा है, और यह क्या है? यह सही नहीं है और उसे इसका कोई अधिकार नहीं है कि वह उन्हें दुख दे, तो उसे अपने जीवन से उसकी भरपाई करनी पड़ेगी जो काम उसने किया है। मिसेस अदीस वॉज सिटिंग इन द ओल्ड बास्केट आर्म चेयर बाय द फायर, वन ऑफ द मेन हैड हेल्प्ड हर इनटू इट। मिसेस अदीस वहाँ पर जो आर्म चेयर पड़ी हुई है बस जो बम्बू स्टिक से बनती है, इसलिए यहाँ पर उसे ओल्ड बास्केट आर्म चेयर कहा गया है, जो फायर के पास रखा हुआ, आग के पास रखा है, वहाँ बैठी हुई हैं। वन ऑफ द मेन, जो ये कीपर्स है उसमें से एक आदमी आता है और उन्हें अंदर जाने के लिए मदद करता है। वी विल गो राउंड टू द आयरन लैच कॉटेज एंड आस्क मिसेस अदीस गेन टू कम डाउन टू यू। हम आयरन लॉज कॉटेज में राउंड के लिए जा रहे हैं और आपकी जो पड़ोसी है मिसेस गेन वो अभी आपके पास आ जाएंगी, ऐसा जो कीपर्स है उसमें से एक कीपर बोलता है। दिस इज अ टेरिबल थिंग टू हैव कम टू यू एंड एज फॉर द मैन हु डिड इट वी हैव अ मिडलिंग गुड गेस हु ही इज एंड ही शैल हैंग।
ये जो आपके साथ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, और हम जिस व्यक्ति ने ये किया है या जिस इस कार्य के लिए जो जिम्मेदार है हम उसे जल्दी ही पकड़ेंगे और उसे सजा मिलेगी. We didn't see his face, but we have got his gun. He threw it into a bush when he bolted, and I swear that gun belongs to Peter Crouch, who is been up to not good since the day he was sacked for stealing corn. कीपर्स कहते हैं कि हाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए जिसने गोली चलाई उस व्यक्ति का चेहरा हम नहीं देख पाए हैं, लेकिन उसकी गन हमें मिली है जो उसने झाड़ियों में फेंक दी थी, और हमें पूरा भरोसा है यह गन पीटर क्राउच की है. पीटर क्राउच कुछ दिनों से अच्छे काम नहीं कर रहा है, जब से कि उसने कॉर्न चुराया था और उसे डिसमिस कर दिया गया था. बट ही couldn't have known it was Tom when he did it. He and Tom always being better friend than he deserved. जब पीटर क्राउच गोली चला रहा था तो उसे पता नहीं था कि यह टॉम है. पीटर क्राउच और टॉम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जबकि पीटर क्राउच टॉम की दोस्ती को डिजर्व नहीं करता है, तो भी वो दोनों आज तक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं. पीटर क्राउच was standing up right now, looking through the crack of the door. He saw Mrs. Addis struggle to her feet and stand by the table, looking down on the dead man's face. He saw her put her hand into her apron pocket, where she had thrust the key of the shed. Peter Crouch was standing up right now. Peter Crouch अब खड़ा हो जाता है. वो जिस कमरे में है, जिस शेड में है, उस शेड के दरवाजे के क्रेक से बाहर देखता है. मिसेस अदीस आपने जो है टेबल के पास खड़ी है और अपने पैर इधर उधर कर रही हैं. लुकिंग डाउन ऑन द डेड मैन्स फेस, और जो इंसान मर गया है था टॉम जो मर गया है उसका चेहरा देख रही हैं. पीटर क्राउच देखता है कि मिसेस अदीस अपना हाथ जो है अपने एप्रॉन के पॉकेट में डालती हैं. मीन्स सी पुट हर हैंड इनटू हर एप्रॉन पॉकेट, जहाँ पर उन्होंने उस कमरे की चाबी रखी हुई. द बूर मैन्स हैव गॉन आफ्टर क्राउच, सेड विडलर नर्वसली ब्रेकिंग द साइलेंस. The boorman means the keepers have gone out to catch the Peter Crouch, and till to here the silent is over there. टॉम की बॉडी आई थी, तो यहाँ पर जब विडलर ने सारी बात बताई कि कैसे टॉम को जंगल में टॉम कीपर्स के साथ टहल रहा था तो उसे गोली लगी और किस तरह से उसकी डेथ हो गई. जब ये सारी बातें बता रहे थे उसके बाद मिसेस अदीस के घर में पूरा साइलेंट फैल गया था. अब वो साइलेंट फैलने के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा था. अब जब बूरमैन्स में जो कीपर्स थे वो पीटर क्राउच को ढूंढने के लिए बाहर गए, तो उसके बाद विडलर ने क्या किया, इस साइलेंट को तोड़ दिया. दे हैड थॉट ही हैड ब्रोकन थ्रू द वुड आयरन लॉचवे. देयर इज नो चांस ऑफ हिज हैविंग बीन बाय देयर. यू हैवंट सीन हिम टुनाइट मैम. विडलर वहाँ की साइलेंट को तोड़ते हुए मिसेस अदीस से कहता है कि ये जो कीपर्स हैं ये पीटर क्राउच को पकड़ने के लिए गए हैं, बट देयर इज नो चांस ऑफ हैविंग बीन बाय देयर. यू हैवंट सीन हिम टुनाइट मैम. वो मिसेस अदीस से पूछता है कि क्या आपने आज रात को पीटर क्राउच को देखा है. देयर वाज अ पॉज. अभी वहाँ पर कोई कुछ बोलता ही नहीं. फिर उसके बाद मिसेस अदीस बोलती, नो सेड मिसेस अदीस, आई हैवंट सीन हिम नॉट सिंस ट्यूसडे. सी took her hand out of her apron's pocket. यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मिसेस अदीस रुकती हैं, उसके बाद वो बोलती हैं, मिसेस अदीस स्पीक आउट, I haven't seen him not since Tuesday. मिसेस अदीस स्पीक आउट कि मैंने ट्यूसडे से ही पीटर क्राउच को नहीं देखा है. And then she took her hand out of her apron's pocket. Then all keepers say, well, we will be getting around the fetch, Mrs. Green reckon. You had been glad to have him. So यहाँ पर सारे कीपर्स साथ में बोलते हैं कि मैडम we are going for a round, means we are going to search the Peter Crouch and we will send Mrs. Green reckon. You had be glad to have here. कि मैं उन्हें यहाँ भेज देता हूँ, आपको यहाँ पर उनके आने से थोड़ी तसल्ली मिलेगी. Mrs. Addis nodded. जब all keepers say like that कि they are sending the Mrs. Green to Mrs. Addis' house, then Mrs. Addis nodded. She is not speaking anything. She is only nodded. Will you carry him in there first? And she pointed to the bedroom. Mrs. Addis टॉम की बॉडी को पॉइंट करते हुए कहती हैं कि क्या आप लोग इसे बेडरूम तक लेकर चलेंगे. The man picked up the stretcher and carried it into the next room.
Then silently each wrung the mother by the hand and went away. Then man picked up the stretcher and carried the Tom's body into the next room, means in the bed. And when they are going from Mrs. Adi's house, they all wrung the Tom's mother's hand one by one and went away. मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ देखिए मीनिंग पूछा है, रंग की मीनिंग क्या होगी? रंग की मीनिंग है टू प्रेस एंड स्क्वेज समथिंग इन ऑर्डर टू रिमूव वाटर फ्रॉम इट. बट यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर जो है सारे जो गार्ड्स हैं, जो भी लोग आए हुए हैं, जो कीपर्स हैं, सब मिसेस हदीस के हाथ को पकड़कर उन्हें सांत्वना देते हैं. यहाँ पर इस सिचुएशन में रंग की मीनिंग होगी हाथ दबाकर सांत्वना देना. तो जितने गार्ड हैं और जो लोग भी आए हैं, जब पीटर की बॉडी बेडरूम में रखी जाती है तो साइलेंटली वो मिसेस हदीस के हाथ पे हाथ रख करके टॉम की मदर को सांत्वना देते हुए बाहर निकल जाते हैं. सी वेटेड until they had shut the door. Then she come towards the set. Crouch once more fell shivering. He couldn't bear it. No, he had rather be hanged than face Mrs. Adair. He heard the key turn in the lock and he nearly screamed. Mrs. Adair waited until the guard had shut the door. Then she come towards the shed where she locked the Peter Crouch. Here, Peter Crouch started the more shivering because of the guilt what he had done with Mrs. Adair. Peter Crouch thought how he can bear it, what he done, how he can face Mrs. Adair. So because of all this thinking, he feels so much guilt, and that's why he started once again more shivering. After some moment, Peter Crouch heard the key turn in the lock and he nearly screamed. तो यहाँ पर मिसेस अदीस कीपर्स के दरवाजा बंद करके जाने का इंतजार करती हैं. फिर वो उस सेट के पास आती हैं जहां उन्होंने पीटर क्राउच को बंद किया है. यहाँ पर पीटर क्राउच अपनी गिल्ट के कारण जो है मिसेस अदीस को फेस करने के लायक नहीं है और इन्हीं सभी बातों को सोचकर वह गिल्ट से मरा जा रहा है और पहले से भी ज्यादा वह शिवरिंग कर रहा है. तभी इतने में उसे चाबियों के घूमने की आवाज आती है और वह चिल्ला उठता है. बट शी डिड नॉट कम इन. शी merely unlocked the door, then crossed the kitchen with a heavy dragging footstep and shut herself in the room where Tom was. So after opening the lock of the set where she locked Peter Crouch, she did not go on inside the set. She crossed the kitchen with a heavy dragging footstep and shut herself in the bedroom where her son Tom's body. अब वो क्या करती हैं, दरवाजा जो है खोल देती हैं. वह हैवी पैरों से चल करके बेडरूम में आती हैं जहां उनके बेटे टॉम की बॉडी रखी हुई है. Peter Crouch knew what he must do. The only thing she wanted to do. The only thing he could possibly do. He opened the door and silently went out. Peter Crouch को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और मिसेस अदीस उससे क्या चाहती हैं. यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल थी कि पीटर क्राउच दरवाजा खोल के चुपचाप दबे पैरों से उनके घर से निकल जाए. तो उसने वही किया. पीटर क्राउच ने दरवाजा ओपन किया और साइलेंटली वह मिसेस अदीस के घर से बाहर चला गया. So in this way we completed this chapter, children. So children, we come to know here the main character is Mrs. Adair. यहाँ पर सारी कहानी जो है मिसेस अदीस के इर्द गिर्द घूमती है. यहाँ एक माँ है मिसेस अदीस जो 40 साल की है. उनका चेहरा एकदम रूखा हो गया है. उनके चेहरे पे ढेर सारी झुर्रियाँ हैं. उनके चेहरे का कलर ब्राउन हो गया है. यह सब दर्शाता है कि वह अधिक परिश्रमी है, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग वुमन है. और even she is hard working woman, his face is looking hard, then also she is what, very kind lady. वह बहुत दयालु औरत है. जब उन्हें पता चलता है कि पीटर क्राउच ने उनके बेटे टॉम को गोली मार दी है, लेकिन वह गोली उसने अनजान में मारी. उसे पता नहीं था कि वह किसे गोली मार रहा है. उसने अपने बचाव में गोली मारी है, जबकि यहाँ पर उसका बेटा पीटर क्राउच की गोली लगने से डेड हो गया है. फिर भी उन्होंने यह सोचा कि पीटर क्राउच ने गलती से काम किया है, अब उसे सजा देकर कुछ फायदा नहीं है, और उन्होंने उसे जाने दिया. इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर मिसेस अदीस का जो हृदय है बहुत विशाल और कोमल है. सो इन दिस वे चिल्ड्रन वी कंप्लीटेड हियर चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट अगेन. थैंक यू चिल्ड्रन.